Hello everyone, welcome back to UXIS. मैं हूं विवेक मिश्रा. As all of you are aware with these classes of Master Reading Comprehension. So this is the class number 5th and this class will complete the whole series of crash course of reading comprehension. But याद रखने वाली बात ये है, this is not the end. ये एक शुरुआत है, एक बिगिनिंग है, जहां आप कंफ्यूज्ड रीडर से एक कॉन्फिडेंट रीडर्स की ओर बढ़ चुके हैं. और आज की क्लास कुछ खास ऐसे है, सारी स्ट्रेटजीज को कंबाइन करेंगे और यू विल लर्न हाउ टू हैंडल द ट्रिकीएस्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विथ ईज. जैसे एक मास्टर शेफ अपनी फाइनल रेसिपी बनाता है, ठीक उसी प्रकार हम आज एक फाइनल जर्नी कंप्लीट करेंगे मास्टर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, जिससे आप फाइनल एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाए. सो ग्रैब योर पेन, ओपन योर माइंड और तैयार हो जाओ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का फाइनल लेवल अनलॉक करने के लिए. Let's make this class not just informative but unforgettable. Okay, आज का पहला पैसेज देखते हैं. As I told you in every classes that we should not look at the passage first, rather we should go for the question that what author is trying to extract from the passage. So here the question is like when we meet the other people while we travel, we learn to differentiate between what. So there is a four options is given, but before that we cannot extract anything. Why? Because we cannot comprehend anything from the question. So for that we have to read the passage first. Only with the long experiences, opening of his wares on many a beach where his language is not spoken, will the merchant come to know the worth of what he carries. तो यहाँ पे merchant एक word मिला हमें. And he carries and what is parochial and what is universal in his choice. So basically, the passage is talking about there is a merchant or merchant like trader, व्यापारी है, who is traveling along the different lands. For what? To describe how we have to see the things, like which is parochial or universal. Now, आगे क्या कह रहा है ये पैसेज? Such delicate goods as justice, love, honor, and courtesy. And indeed, all the things we care for are valid everywhere. But they are variously molded and often differently handled and sometimes nearly unrecognizable. Okay? If you meet them in a foreign land, and the art of learning fundamental common values is perhaps the greatest gain of travel to those who wish to live in the ease among their fellows. See, the overall passage is talking about particular merchant, like trader. There is a one merchant who is traveling along the different lands to describe how we learn the real values of our beliefs. And after visiting so many places, merchant realizes that visiting many places among the many peoples, we have to look at what is universally adopted things and what is parochial. Parochial means narrow minded, मतलब कि closed circle में जो चीजें हम देखते हैं. कंसेप्ट लाइक जस्टिस, ये दिया हुआ है ना यहाँ पे, जस्टिस, लव, ऑनर, कर्टसी. देखो ये सारी चीजें कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर समाज में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड चीजें, सबको ये चीजें चाहिए. इसमें आगे कहा गया है कि इंडीड ऑल द थिंग्स वी केयर फॉर वैलिड एवरीवेयर बट वेरियसली मोल्डेड एंड डिफरेंटली हैंडल्ड. का मतलब ये है कि दे आर इंपॉर्टेंट एवरीवेयर बट द डिफरेंट कल्चर्स एक्सप्रेसेस और अंडरस्टैंड देम डिफरेंटली. हर समय हर समाज में अलग अलग तरीके से इसे देखा जा सकता है, लेकिन ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें तो ये सबको ये एक्सेप्टेबल है, सबको ये चीजें चाहिए. ठीक है, बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज कंसीडर्ड पोलाइट इन वन कल्चर might be seem too rude in other culture. Okay. So the biggest benefit of the travel is not just sightseeing. सिर्फ sightseeing करना ही biggest benefit नहीं है travel करने का, but learning the values we all share as a human being, and they are expressed differently. And this understanding helps us to live peacefully, comfortability के साथ, even if there are very different culture or differences between us. ठीक है, तो एक बार फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से समझ. ठीक है, ओवरऑल ये पैसेज ये कह रहा है कि देयर आर वन मर्चेंट, व्यापारी है, कोई ट्रेडर है जो एक अलग अलग जगह पे अलग अलग देशों में
ट्रैवल करता है ना, और वहां जाने से उसे पता चलता है कि वहां कई सारी लैंग्वेजेस हैं जो उसे कुछ समझ में भी नहीं आती, लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सली वैल्यूएबल और एक्सेप्टेबल चीजें हैं जो सभी लोगों को पसंद है, जैसे जस्टिस हो गया, लव हो गया, ऑनर हो गई, कर्टसी हो गई, है ना? तो ये सब चीजें सबको चाहिए। हाँ, उन्हें समझने के लिए उनका तरीका अलग हो सकता है, हमारे लिए कुछ अलग हो सकता है, उनके लिए कुछ अलग हो सकता है। इसके आगे ऑथर ये कहना चाहता है कि ट्रैवल करने का सबसे बड़ा फायदा होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये है कि हम बहुत कुछ सीखते हैं, लाइक कॉमन वैल्यूज को कैसे समझना है, और अगर हम ये सीख लें तो दुनिया के किसी भी कोने में हम लोगों के साथ बड़े ही ईज तरीके से रह सकते हैं। ओवरऑल पैसेज का सार इतना ही है। समझ में आई? अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, देखो, व्हेन वी मीट अदर पीपल व्हाइल वी ट्रैवलिंग वी लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट। जब हम लोगों से मिलते हैं तो हम क्या डिफरेंशिएट कर पाते हैं, ये ओवरऑल क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन क्या है? इमेजिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट। पैसेज इज नॉट टॉकिंग अबाउट इमेजिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। सेकंड वन सेज communities and nationalities. This statement is also wrong. Now the third one says local values and the universal values. बहुत इजी पैसेज है, अगर आप ध्यान से समझो। सो यही तो पैसेज में बात कर रहा है ना, कि यूनिवर्सली कुछ चीजें हैं जो सबको चाहिए, और कुछ चीजें पैरोकियल हैं। तो जब हम कहीं जाएंगे किसी देश में तो वहां की लोकल वैल्यूज को सीखेंगे, और यूनिवर्सल वैल्यूज भी होती हैं कुछ, जिसे हमें समझना चाहिए। तो जब हम किसी देश में जाते हैं तो वहां भी यूनिवर्सल चीजें भी होती हैं, बट उनका तरीका लोकल होता है, उनका तरीका उनके कल्चर से रिलेटेड होता है। वही तो ये स्टेटमेंट कह रहा है। तो द आंसर इज सी, दैट इज local values and the universal values. And D is absolutely not talking about this, friends and foes. It is not correct answer. ठीक है, सही इसी से है। इसी का एक और क्वेश्चन है। इट इज टॉकिंग अबाउट द assumption. assumption, ठीक है। अब हमने पैसेज ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो आप ध्यान से देखो, स्टेटमेंट पढ़ना है कि क्या पूछ रहा है। नाउ ट्रैवल लीड्स टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन। द स्टेटमेंट सेज ट्रैवल लीड्स टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमंस। दूसरा कह रहा है ट्रैवल हेल्प्स दोज हु विश टू लर्न फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज। ठीक है। तीसरा कह रहा है अ पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंसेस इन ट्रैवल कैन रिजॉल्व द डिफरेंसेस अमंग द पीपल। देखो पहले तो ऑप्शन देखो, एक दो, दो तीन, एक तीन, एक दो तीन, इस टाइप से है। तो इससे आप इजीली समझ सकते हो कि अगर एक भी कोई भी ऑप्शन इसको एलिमिनेट करेंगे तो आंसर तक हम इजीली पहुंच सकते हैं। वाई? बिकॉज ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है। अब इसके लिए हमें यह समझना होगा कि एक आंसर इसमें एक ऑप्शन कौन सा गलत है। तीसरा स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो, इसमें क्या लिखा हुआ है? अ पर्सन विथ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस इन ट्रेवल कैन रिजॉल्व डिफरेंसेस अमंग द पीपल। नाउ खुद कॉमन सेंस लगाओ। पहली बात तो एजम्पशन पूछा हुआ है क्वेश्चन में, बट आप कॉमन सेंस लगाओ। एनी पर्सन हु हैज द लॉन्ग एक्सपीरियंस इन ट्रेवल, कैन ही रिजॉल्व द डिफरेंसेस अमंग द पीपल? कैन ही? No, absolutely not. He cannot. And the passage is also not talking about this. So this statement is outrightly rejected because this is not related to passage. So यहाँ पे आप तीन जहां पे देखोगे उसे आप कट कर दोगे, हमें हमारा आंसर मिल गया। आंसर इज 1 and 2। एंड सेकंड स्टेटमेंट देखो, सीधा सीधा पैसेज से लिखा लिया हुआ है दैट ट्रैवल हेल्प्स टू दोज हु विश टू लर्न द फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज। ये देखो, it is the art of learning fundamental common value is perhaps the greatest gain of travel। तो सीधा हुआ उठाया हुआ पैसेज का आंसर है। ठीक है। एंड फर्स्ट वन इज ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट द ट्रैवल लीड्स टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमंस। ऑफ कोर्स हम जब दूसरे देश में जाएंगे वहां का कल्चर समझेंगे, वहां के ह्यूमन बीइंग्स को, तो उससे समझना इजी हो जाएगा। सो फर्स्ट वन इज ऑल्सो राइट, और ऑप्शन से भी इसको हम सही कर चुके हैं। ठीक है, चलो अब दूसरा पैसेज देखते हैं। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लुक इनटू द questions which was asked by the passage। Okay, so the question is talking about the inferences, like this is the clear cut passage of inference पूछ रहा है हमें। अब पढ़ेंगे पैसेज पहले। now conventional classrooms by emphasizing fixed duration over learning effectiveness resign themselves to variable outcomes। देखो अब यहां तक समझो क्या कह रहा है। कन्वेंशनल क्लासरूम जो होती हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, वो एम्फेसाइज कर रही हैं फिक्स्ड ड्यूरेशन को। ठीक है, दिस स्टेटमेंट सेज दैट इट इज एम्फेसाइजिंग द फिक्स्ड ड्यूरेशन ओवर लर्निंग इफेक्टिवनेस। मतलब कि जो कन्वेंशनल क्लासरूम सिस्टम होता है हमारे देश में, वो प्रायोरिटी किसको दे रही है?
फिक्स्ड ड्यूरेशन को प्रायोरिटी दिया जा रहा है, ना कि लर्निंग इफेक्टिवनेस को। रिजाइन देमसेल्फ टू अ वेरिएबल आउटकम्स, वही चीज बोल रहा है कि इफेक्टिवनेस, उससे हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, उसकी इफेक्टिवनेस कितनी हो रही है, इस पे ध्यान ना देख करके रादर देन वी आर फोकसिंग ऑन फिक्स्ड ड्यूरेशन ऑफ दिस कन्वेंशनल क्लास सिस्टम। जैसे पूरे स्कूलिंग सिस्टम में होता है ना कि हम क्लास 1 से 2 में जाते हैं, 2 से 3 में जाते हैं, 1 साल का पीरियड होता है, उसकी बात कर रहे हैं। नाउ द टायरनी इज, आगे क्या कह रहा है, नाउ द टायरनी यानी दुर्भाग्य ये है, द टायरनी ऑफ द क्लासरूम इज दैट एवरी लर्नर इज सब्जेक्टेड टू द सेम सेट ऑफ लेक्चर, सेम लेक्चर मिलता है उन्हें, सेम सेट ऑफ ड्यूरेशन में, सेम वे, सेम उसी तरीके से मिलता है सब कुछ। एंड इन द एंड अ फ्यू लर्नर्स साइन, सम सर्वाइव एंड रेस्ट आर लेफ्ट बिहाइंड। कुछ रह जाते हैं, कुछ चमक जाते हैं, कुछ सर्वाइव कर जाते हैं और बाकी छूट जाते हैं पीछे। आफ्टर फिक्स्ड ड्यूरेशन द क्लासरूम मॉडल मूव्स ऑन, ठीक है, एक समय के बाद क्लासरूम आगे बढ़ जाता है, क्लासरूम अपने मॉडल को आगे बढ़ा देते हैं, मतलब हम क्लास 1 से क्लास 2 में शिफ्ट हो जाते हैं। बट ये समझ नहीं आता विथ नॉट थॉट स्प्रेड फॉर दोज लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन हम ये नहीं देखते कि कौन से बच्चे किस लेवल पे हैं। मतलब कुछ बच्चे हो सकता है एवरेज मार्क्स के साथ पास हो जाएं, कुछ बच्चे फर्स्ट रैंक के साथ पास हो जाएं, और कुछ बच्चे सिर्फ पास हो जाएं, निकल गए, लेकिन कितना उन्हें अंडरस्टैंडिंग है उस क्लास की, कितना वो कॉम्प्रिहेंड कर पाए हैं, कितनी उनके अंडर, कितना वो समझ पाए हैं, इस पे हमारा फोकस नहीं होता है। नाउ दिस इज हाउ वी एंड अप with 10% employability in our graduates after a decades and half of the formal education। समझ में आई बात? Now repeating the same ineffectual script in the realm of the skill education will not produce the different result। See, अब ध्यान से समझना। Overall, the passage is talking about the conventional class, which focuses more on fixed time schedule rather than how well students are actually learning, एंड दिस क्रिएट्स इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स। बात समझ में आई? प्रॉब्लम क्या हो रही है ट्रेडिशनल क्लासरूम से, दैट एवरी स्टूडेंट इज टॉट इन द एग्जैक्ट सेम वे मैनर, सेम अमाउंट ऑफ टाइम, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, सबको एक जैसा मिल रहा है। एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स वेरी, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ मैनेज कर ले रहे हैं, एक तरीके से एवरेज एवरेज निकल जा रहे हैं, और कुछ तो बहुत ही पीछे छूट जा रहे हैं। एंड वंस द फिक्स्ड कोर्स ड्यूरेशन इज ओवर द सिस्टम सिंपली मूव्स ऑन, मतलब वही मैंने जो बताया कि क्लास, एक क्लास से दूसरी क्लास में हम मूव कर गए, बट हमने ये नहीं देखा कि कितनी इफेक्टिवनेस के साथ हमने वो पढ़ाई करी है। जो बच्चे पीछे छूट गए हैं उनकी इफेक्टिवनेस का ध्यान कौन रखेगा? ठीक है ना? एंड दिस ओवरऑल आउटडेटेड अप्रोच जो है, it is the reason why, it is the reason behind the 10%, approximately 10% our graduates are considered for employability। मतलब कि 10% लोग ही ऐसे निकल रहे हैं जिनको नौकरी मिलने के लायक है। जो बात समझ में आई आपके? नाउ आफ्टर द डेकेड्स, मतलब ये दशकों का होता है, जो पढ़ाई होती है हमारी स्कूलिंग सिस्टम है, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, ये सब करने के बाद भी हमारे पास सिर्फ 10% लोग ही निकल रहे हैं जो जॉब पा सकते हैं। और आगे ये बोल रहा है कि इफ द सेम थिंग, द सेम फ्लॉड मेथड इज यूज्ड इन स्किल एजुकेशन, देन वी शुड नॉट एक्सपेक्ट द बेटर आउटकम्स। अगर हम स्किल एजुकेशन में ये सब चीजें फिर से वही दोहराएंगे, वही चीजें दोहराएंगे, तो फिर हमें ये आशा नहीं करनी चाहिए कि कुछ भी बेहतर होगा। ठीक है? ओवरऑल पैसेज समझ में आया? अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज, in conventional classroom, learning the central goal is duration of the learning rather than attainment of the competency। कुछ समझ में आई बात? कन्वेंशनल क्लासरूम लर्निंग में सेंट्रल गोल जो होता है वो ड्यूरेशन होता है पढ़ाई का, रादर देन अटेनमेंट ऑफ द कॉम्पिटेंसी, इफेक्टिवनेस। यही तो बात कर रहा है, यही तो पैसेज बोल रहा है। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। Now, the second statement says that the conventional classroom encourages one size fits all approach and stamp out all differentiation। Again, it is right because passage is talking about एक तरीके का क्लासरूम, एक तरीके का एफर्ट, एक तरीके की एनर्जी, सब कुछ प्रोवाइड की जाती है कन्वेंशनल क्लासरूम में, बिना ये देखे कि इंडिविजुअल लेवल पे बच्चे अलग-अलग टाइप के होते हैं। उनकी इंडिविजुअलिटी को देखे हुए बिना सबको फिट फॉर ऑल एक जैसा सबको ये चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है? एग्जैक्टली द स्टेटमेंट इज राइट व्हिच कैन बी इन्फरेंस्ड फ्रॉम दिस पैसेज, निकाला जा सकता है। सो द स्टेटमेंट 2 इज आल्सो राइट। सो हियर इज द आंसर इज बोथ 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है? नाउ अगेन वन क्वेश्चन इज फ्रॉम दिस पैसेज ओनली।
सो इसमें अब देखो, अभी हमने इन्फ्रेंसेस निकाला, अब हम निकालेंगे अजम्पशन। अजम्पशन के बारे में ये पूछ रहा है। पहले स्टेटमेंट पढ़ो। एज अ लार्ज नंबर ऑफ द वर्कर्स इन आवर कंट्री आर एम्प्लॉयड इन अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर, इंडिया डज नॉट नीड टू चेंज इट्स प्रेजेंट कन्वेंशनल क्लासरूम सिस्टम ऑफ एजुकेशन। देखो, अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट कैसे गलत है वो पकड़ना। सबसे पहले, जो पूरा पैसेज है, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्कर्स कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। दूसरा, यहाँ पे एक चीज है जो ये कह रहा है कि इट इज प्रेजेंट कन्वेंशनल क्लासरूम सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इट डज नॉट नीड टू चेंज, मतलब कि ये पॉजिटिविटी दिखा रहा है उसमें, जबकि यहाँ पे तो एक तरीके से उसकी कमियां बता रहे हैं ना हम। ऑथर वांट्स टू से द निगेटिव साइड ऑफ द कन्वेंशनल क्लासरूम, जिससे जो इम्पैक्ट कर रहा है ओवरऑल एम्प्लॉयबिलिटी में। और जो यहाँ पे जो लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स बताया जा रहा है, अब आप देखो खुद, 10% ऑफ द वर्कर्स एम्प्लॉयबिलिटी इज कमिंग आउट आफ्टर दिस काइंड ऑफ कन्वेंशनल क्लासरूम सिस्टम। सो हाउ दिस स्टेटमेंट कुड बी करेक्ट? नहीं हो सकता, ये एब्सोल्युटली राइट रॉन्ग है। This statement is absolutely wrong. बात समझ में आई? Now the second one says that even with its present conventional classroom system of education, India produces sufficient number of skilled workers to fully realize the benefits of the demographic dividend. पहली बात तो demographic dividend की बात नहीं हो रही। दूसरी बात क्या बोल रहा है कि sufficient number, the sufficient number। दूसरी बात कर रहा है सफिशिएंट नंबर की। तो सफिशिएंट नंबर नहीं, 10% एम्प्लॉयबिलिटी की बात कर रहा है। सो अगेन द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, नाइदर वन नॉर टू इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? हियर द सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। आई होप आप समझ गए होंगे। याद रखना, कोई भी पैसेज सॉल्व कर रहे हो, पहले आप पॉज करोगे वीडियो, फिर उसे सॉल्व करोगे, ठीक है? देखते हैं अगला पैसेज। तो दिस इज आल्सो टॉकिंग अबाउट assumption। फर्स्ट वी हैव टू रीड द पैसेज। आप वीडियो पॉज करो, पैसेज पढ़ो, अपने से सॉल्व करो, अपना लॉजिक लगाओ, उसके बाद से वीडियो ऑन करके इसको देखना, ठीक है? नाउ, व्हेन चाइल्ड रीचेस एडोलेसेंट, when a child reaches adolescence, there is apt to be conflict between the parents and the child। जैसे ही एक बच्चा एडोलेसेंट बनता है, वहां पे उसके पेरेंट्स और उसके बीच में कन्फ्लिक्ट होना, विवाद होना स्टार्ट हो जाता है। आगे कहता है, सिंस द लेटर कंसीडर्ड हिमसेल्फ टू बी बाय नाउ क्वाइट कैपेबल ऑफ मैनेजिंग हिज ओन अफेयर्स, while the former, देखो, फॉर्मर आर filled with parental solicitude, which is often disguised for the love of power। देखो, so basically the passage is talking about when the child enters into adolescence age, some amount of conflict with their parents is inevitable। कुछ ना कुछ विवाद होना, कुछ ना कुछ we can say conflict होना स्टार्ट हो जाता है। एंड द एडोलेसेंट नाउ फील्स कैपेबल ऑफ, मतलब जो बच्चा होता है, एडोलेसेंट होता है, वो ऐसा फील करने लगता है कि नाउ आई एम सफिशिएंट माई सेल्फ टू मैनेज, आई एम कैपेबल ऑफ मैनेजिंग माई ओन अफेयर्स। बट जो पेरेंट्स होते हैं दे यूजली बिलीव दैट दे अलोन शुड गाइड देयर चाइल्ड। ठीक है ना? पेरेंट्स को लगता है नहीं, हम हैं द होल अथॉरिटी, हमें गाइड करना चाहिए, ठीक है ना? फर्दर says that the parents consider, which is usually that the various moral problems which arises in adolescence are peculiarly with their province। The options they expressed, however, are so dogmatic, and the young seldom confide in them and usually go for their own way in secret। अब समझो बात को। देखो, इस ओवरऑल पैसेज का मतलब ये है कि देयर इज अ चाइल्ड हु enters into adolescence एज में जा रहा है। सो जैसे ही वो एडोलसेंस एज पे जाता है, मोर देन 16 ईयर, सम अमाउंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है उसके और पेरेंट्स के बीच में। नाउ द एडोलसेंस थिंक्स दैट ही इज कैपेबल ऑफ मैनेजिंग हिज ओन अफेयर्स, ओन लाइफ, वो खुद मैनेज कर सकता है। बट द पेरेंट्स ऑन द अदर हैंड थिंक्स दैट दिस इज देयर डोमेन। यहाँ पे ये जो लिखा है पिक्यूलियरी टू देयर प्रोविंस, इसका मतलब है ये उनका डोमेन है। पेरेंट्स सोचते हैं कि पेरेंट्स को ये बताना होगा, ये हमारा अधिकार है एज अ पेरेंट्स, ठीक है ना? सो पेरेंट्स यूजुअली बिलीव दैट दे अलोन शुड गाइड देयर चाइल्ड थ्रू द मोरल चेंजेस of that particular age in which the child goes। However, the way of express their view is often too rigid। जिसको ये dogmatic कह रहा है, ठीक है ना, बहुत rigid है। As a result क्या होता है, teenager rarely feel
ट्रूली अंडरस्टूड, मतलब उसमें ये जो यंग सेल्डम रेफर लिखा है ना, कन्फाइड, कन्फाइड मीन्स कन्फेस करना। तो ऐसे में क्या, ऐसी सिचुएशन जब अराइज होती है कि पेरेंट्स अपनी जिद में अड़े होते हैं, तो बच्चा क्या करता है, सेल्डम अकर, सेल्डम का मतलब होता है रेयर, कभी कभी, है ना, सेल्डमली कन्फाइड इन देम, मतलब उनसे कभी कभी, बहुत रेयरली होगा जब बच्चा पेरेंट्स से कुछ भी चीज शेयर कर सकता है, शेयर करता है, कन्फेस करता है। ज्यादातर वो क्या करता है, यूजुअली गो देयर ओन वे इन सीक्रेट, हर चीज सीक्रेटली रखता है, पेरेंट्स से डिस्कस नहीं करता, है ना। ज्यादातर ही चूज टू मेक हिज ओन डिसीजन इन सीक्रेट विदाउट देयर पेरेंट्स नॉलेज। द ओवरऑल पैसेज इज टॉकिंग अबाउट दिस, अंडरस्टूड। नाउ द क्वेश्चन सेज, इट इज आस्किंग द assumption, क्या हम assumption निकाल सकते हैं इस पैसेज से। पहला कहता है, द adolescent does not feel comfortable with his parents because they tend to be dominating and assertive. Absolutely right. The second one says, adolescent of modern times does not have much respect for their parents. अब ध्यान से समझो ये पैसेज, कि ये स्टेटमेंट कह रहा है adolescent of modern times does not have much respect for parents. पहली बात तो मॉडर्न टाइम के बच्चे कैसे हैं, ओल्ड टाइम के बच्चे कैसे हैं, ये नहीं डिफरेंशिएट किया गया है पैसेज में। दूसरी बात, इसको गलत करने का एक पॉइंट ये है, this is saying, this statement is talking about that adolescent is not respecting, not much respecting their parents. बट ध्यान से समझो, जब यहाँ पे लिखा है दे यूजली गो फॉर देयर ओन वे इन सीक्रेट, अगर वो बच्चा अपने पेरेंट्स से कुछ चीजें छिपा के कर रहा है, इट मीन्स दे ही हैज सम रिस्पेक्ट फॉर देयर पेरेंट्स, सम रिस्पेक्ट फॉर हिज पेरेंट्स। तो ये तो एजम्पशन हम कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो अब स्टेटमेंट टू इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, statement 1 is absolutely right. How? Why? Because this is the whole passage is talking about, like the adolescent does not feel comfortable. Why? Because their parents, the passage is particularly talking about the negative side of the parents. Why? Because they try to dominate the child. Why? Because they think that this is their domain, their province to handle with morally uh, created problems and other created problems of that particular age of their child. So that's why this statement is right. Understood? Now, the next one says, again, this is the assumption based question. इसे हमें solve करना है। वीडियो पॉज करो, पहले खुद से solve करो, फिर इस पे आना, ठीक है। चलो, so geographers analyzed 175 satellites images of ocean color, which is an indicator of phytoplanktons productivity at the ocean's surface. Okay, and found that giant icebergs are responsible for storing up to 20% of the carbon in southern ocean. The researchers discovered that melting water from giant iceberg, okay, which contains iron and the other nutrients, high levels of phytoplankton grow. So basically, author wants to say that geographers studied 175 के अराउंड, उन्होंने सैटेलाइट को, उनकी इमेजेस को पढ़ा, जो कि ओशंस के कलर को शो करता है, which helps to track the phytoplanktons levels उस पूरे वाटर बॉडी की। Now, phytoplanktons are basically kind of plants, like organism, living beings that live on the ocean surface and play a major role, big role in absorbing the carbon dioxide. समझ में आ रही बात? CO2 absorb करने में phytoplanktons बहुत ही important और major role play करते हैं. Now, the scientists found that there are a giant icebergs in the ocean, southern ocean particularly, and they are responsible up to storing 20% of this carbon dioxide. ठीक है ना? 20% of the carbon is emission, this absorbed by these giant icebergs. Now, when these massive icebergs melt, they releases iron, they releases nutrients. कहाँ पे? पानी पे, water पे. Now, this acts like a fertilizer for the phytoplanktons and causing them to grow in a large number. And as a result, the more phytoplanktons there are, the more carbon dioxide or carbon they absorb. So these icebergs unexpectedly help to reduce atmospheric carbon by boosting the ocean productivity. बात समझ में आई? ओवरऑल क्लाइमेट चेंज में ये एक तरीके से पॉजिटिव इंपैक्ट करता है, ये कहा जा रहा है इस पैसेज में। नाउ स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट कहता है जाइंट आइसबर्ग
have a bearing on primary productivity and food chains in the southern ocean. फिर से पढ़ो. Giant iceberg have a bearing on primary productivity. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में फर्स्ट फाइटोप्लैंक्टन आता है, एनवायरनमेंट में आपने पढ़ा होगा. एंड फूड चेन्स इन सदर्न ओशन. देखो ये पूरा पैसेज ही पर्टिकुलर सदर्न ओशन के बारे में बात कर रहा है. ऑफ कोर्स द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट. व्हाई? बिकॉज इट इज फोकसिंग ऑन प्राइमरी प्रोडक्टिव ऑफ दैट पर्टिकुलर सदर्न ओशन. So that's why this statement is outrightly correlated with the statement of this given passage and is absolutely right. Now, the second statement says that the melting of the giant iceberg can produce the climate change effects and impact of world fisheries. ध्यान से देखो, मेल्टिंग ऑफ जाइंट आइसबर्ग कैन प्रोड्यूस द क्लाइमेट चेंज. ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आती है, क्योंकि इससे क्लाइमेट चेंज में असर हो सकता है, जैसा कि यहाँ पे बोला भी गया. लेकिन इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज बोल रहा है, और ये यहाँ पे ये जो वर्ल्ड फिशरीज वर्ड है, ये पूरे स्टेटमेंट को गलत करता है. कैसे? व्हाई? बिकॉज द वर्ल्ड फिशरीज इज नॉट अफेक्टेड बाय दिस, बिकॉज दिस पैसेज इज पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द सदर्न ओशन. बात समझ में आई? So that's why this statement 2 is wrong. Statement 1 is the correct answer. Answer is 1 only. अब देखते हैं नेक्स्ट वन. फिर से पैसेज पढ़ो, वीडियो पॉज करो, पैसेज पढ़ो, खुद से सॉल्व करो, देन इसको ऑन करके देखना. So passage is talking about the logical or the rational practical message. Again, पहले पढ़ो पैसेज क्या बोल रहा है. So passage is talking about evolution has endowed caterpillars that feed on corn, ठीक है, with a unique ability they can induce the plant to turn off its defense against insects or predators. This helps the caterpillars to eat more and grow faster. The agent that causes this effect is the caterpillar's feces, यानी कि excreta. The finds could throw new light on compounds associated with the plant's response to the pathogens like fungi or the bacteria. देखो, ओवरऑल पैसेज ये बात कर रहा है कि एवोल्यूशन ने जो ये कॉर्न होता है ना, जो कॉर्न को खाने वाले कैटरपिलर्स होते हैं, मतलब कीड़े होते हैं, वो एक उनको एक खास पावर दी है कि मतलब एक तरीके का एक यूनिक पावर मिला हुआ है. जब ये कैटरपिलर्स कॉर्न के प्लांट को खाते हैं, तो ये अपनी बॉडी से एक तरीके का जो एक्सक्रीटा निकालते हैं ना, उससे जो एक्सक्रीटा निकलता है, वो जो कॉर्न प्लांट होते हैं ना, उसको वो कंफ्यूज कर देते हैं. उससे कॉर्न प्लांट जो होते हैं कंफ्यूज होते हैं. ये जो लिखा है ना यहाँ पे एक्सक्रीटा, फीसेस, फीसेस मींस एक्सक्रीटा. सो जो ये एक्सक्रीटा निकालते हैं, उससे जो कॉर्न प्लांट्स होते हैं, वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, और उससे वो अपना जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, जिससे वो बचा के रखते हैं खुद को, वो बंद कर देते हैं. दैट टर्न्स ऑफ देयर नेचुरल डिफेंस. ये लिखा हुआ है यहाँ पे, नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट इंसेक्ट्स एंड द प्रेडेटर्स. और इससे क्या होता है, जो नॉर्मली इंसेक्ट्स और प्रेडेटर्स होते हैं, उससे जो वो अभी तक बच रहे थे, अब वो उससे निकल जाते हैं उस जोन से. बात समझ में आई? और जब ये प्लांट अपना डिफेंस सिस्टम हटा लेते हैं, बंद कर देते हैं, एज अ रिजल्ट कैटरपिलर्स और ज्यादा कॉर्न को खाने लगते हैं, कॉर्न के प्लांट को खाने लगते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ जल्दी जल्दी होने लगती है, वो ज्यादा सर्वाइव कर पाते हैं, और उनका सर्वाइवल ईजी हो जाता है. ना ओवरऑल ये पैसेज कहता है कि ये डिस्कवरी साइंटिस्ट को ये समझने में हेल्प कर सकती है कि प्लांट्स हार्मफुल चीजों जैसे ये फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, है ना, इनके अगेंस्ट कैसे रिएक्ट करते हैं, और इसी के लिए ये ओवरऑल डिस्कवरी बेनिफिशियल होगी टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. बात समझ में आई? अब देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं. सो फर्स्ट ए इज दैट फार्मर्स कैन यूज कैटरपिलर्स टू फीड ऑन वीड्स इन देयर क्रॉप फील्ड्स एंड प्लांटेशन. अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे बात हुई है कॉर्न की, ठीक है, क्या कॉर्न वीड में आता है? ऑफ कोर्स नहीं आता. कॉर्न इज नॉट वीड, and the statement says that there is a feed on weeds in their crop. We cannot say that corn is a feed. So this statement is wrong in that behalf. ठीक. So the second one says that this finding can help in development of clinically useful antimicrobial compounds. ठीक है, फर्स्ट इंस्टांस समझ में एक तरीके से लग रहा है. Why? Because it is talking about some kind of uh, development which is compound related. Why? Which is it is associated to the compounds. ठीक है, तो इसको होल्ड पे रखो. तीसरा देखो पहले, दिस फाइंडिंग कैन हेल्प this finding can help in the development of organic, ecologically or sustainable pesticide. इसको भी होल्ड में रखो.
चौथा देखते हैं, कैटरपिलर्स कैन बी जेनेटिकली देखो जेनेटिकली मॉडिफाइड का तो देखते ही नाम काटो, इसकी तो बात ही नहीं किया गया। सो दिस स्टेटमेंट इज आउटराइटली रिजेक्टेड, फर्स्ट इज रॉन्ग। नाउ वी हैव टू ऑप्शन बी और सी, इसमें से हमें बेस्ट रिफ्लेक्ट करना है कि कौन सा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, प्रैक्टिकल मैसेज कन्वे किया गया है इस पूरे पैसेज में, इसने ऑथर ने। ठीक है, अब ध्यान से तीसरा स्टेटमेंट पढ़ो, दिस फाइंडिंग कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक, इकोलॉजिकली और सस्टेनेबल पेस्टिसाइड्स। समझ में आई बात? फीजेस, ये जो फीजेस है ये ऑर्गेनिकली निकल रहा है किससे? कैटरपिलर से। इकोलॉजिकली सस्टेनेबल पेस्टिसाइड बनाने के लिए इससे साइंटिस्ट को हेल्प मिलेगी। So this statement is absolutely what the message is tried by the author to convey. ठीक है ना? So this is right and the B, why B is wrong because it is not talking about the antimicrobial compound. चलो, अब अगला कहता है, अच्छा ठीक है, फिर आ गया नेक्स्ट वन, ये क्रक्स बता रहा है, अब इसे देखना है। एक सेकंड, हाँ जी, पढ़ो इसे, स्टार्ट करो, कहाँ से पूछ रहा है ये? क्रक्स बताना है, क्रक्स मतलब ओवरऑल मैसेज बताना है, वही चीज है। स्टार्ट करो। इन अ रोबस्ट डेमोक्रेसी रियलिटी हाउसोएवर inconvenient it may be finds its expression both in speech of political leaders and the other social forms of assertion। ठीक है, एक मजबूत डेमोक्रेसी में चाहे सच कितना भी अनकंफर्टेबल या इनकन्वीनियंट हो, उसे छुपाया नहीं जा सकता। सच अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, लाइक पॉलिटिकल लीडर्स के उनको भी बताना होता है, और या तो पब्लिकली या तो अदर सोशल फॉर्म्स में आप बता सकते हो। ये पूरा ओवरऑल यहाँ तक समझ में आया, ये कह रहा है। ठीक, नाउ द एग्जिस्टेंस ऑफ द रियल हैज टू बी transparent both through the its circulation in and by the media as well, its augmentative articulation in deliberative democracy, a normatively responsible media through its communication effect has the responsibility to circulate the content of reality without distortion। देखो, पैसेज में भी ये बात कही जा रही है कि एक रोबस्ट डेमोक्रेसी में, मजबूत डेमोक्रेसी में, चाहे वो कितना भी इनकन्वीनियंट सच हो, है ना, उसे आपको बताना होता है, उसे आप छिपा नहीं सकते। चाहे फिर वो लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स की स्पीचेस से पता चले या फिर पब्लिकली या अदर सोशल फॉर्म्स के रूप में निकल सके, लेकिन जो रियल है, जो रियलिटी है, उसे क्लियरली पता होना चाहिए। अब मीडिया का ये फॉर्म के बारे में आगे कहता है कि मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कि वो सच को बिना छुपाए हुए, बिना डिस्टॉर्ट किए हुए लोगों तक पहुंचाए, रियलिटी को वैसा ही दिखाए जैसा कि वो रियल फॉर्म में है, विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्टॉर्शन। पहला कह रहा है रिस्पॉन्सिबल मीडिया शुड नॉट डिस्टॉर्ट द रियल इन एन आइडियल डेमोक्रेसी। Responsible media should not distort the real in an ideal democracy। अब ध्यान से रिलेट करो, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? एब्सोल्युटली स्टेटमेंट इज राइट, लेकिन अभी हमें आगे बढ़ना है तो इसे हम होल्ड पे लगा के रखते हैं। सेकंड देखो, फेक न्यूज सीम्स इनहेरेंट इन द लाइफ इन आइडियल डेमोक्रेसी। इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट फेक न्यूज। There should not be any kind of restrictions on the freedom of expression in an ideal democracy। ये भी सही हो सकता है। Now the irresponsible media and the political leaders cannot be effectively controlled by an ideal democracy। Passage, this statement says that there is a controlled way of political leaders or media। So passage is no other way around is talking about the control of media or the political leaders। So absolutely D is wrong। ठीक है ना, ये नहीं होगा। Now C और A में more expressively, more comprehended crux of this passage is A। Why? Because it is saying that the responsible media, it is the responsibility of the media to share any kind of news in the front of people without distorting it, है ना? यही तो ideal democracy होनी चाहिए। That is what the whole passage is talking about। So that's why the option A is correct answer। ठीक है? Option A is the correct one। अब अगला देखते हैं। This is talking about most logical और rational practical message, again वही चीज। ठीक है, फिर से पढ़ो। अब स्टार्ट करो, क्या बोल रहा है ये? Nowadays there is a growing trend to use interconnected home device। एक एक लाइन पढ़ा करो, ठीक है? पॉइंट जहां पे फुल स्टॉप दिया हो वहां तक पढ़ो, वहां की मीनिंग समझो, अगेन फिर उसके आगे पढ़ो। ये सारी चीजें प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं, इसलिए अभी नहीं बता रहा हूं डिटेल में, सिर्फ इसे सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है ना? Nowadays there is a growing trend, आजकल ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि जो हमारी डिवाइसेज हैं घर में, ये सब होम डिवाइसेज इंटरकनेक्ट किए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल एलेक्सा, ठीक है ना, बेस्ट एग्जांपल है इसका। एज द कंज्यूमर इंक्रीजिंगली नेटवर्क देयर होम्स, द कनेक्टेड होम डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स and service provider will seek to overcome thin profit margin by gathering more of our personal data with or without agreement, turning the home into a corporate storefront। आगे कहता है corporate marketers will have the powerful incentives to observe consumer behavior to understand the buying needs and the preferences of the device owners।
देखो, ओवरऑल दिस पैसेज इज टॉकिंग अबाउट दीज डेज हम क्या कर रहे होते हैं, मोर एंड मोर पीपल्स आर in the society are gathering or connected with their homes with devices like Alexa हो गया जो मैंने अभी बताया, स्मार्ट टीवी हो गए, स्पीकर्स हो गए, है ना। सो हम ये सब चीजों को कनेक्ट कर देते हैं खुद से। अब हम ये सब चीजों से कनेक्टेड हैं। As of these devices becoming common in our homes, so now the companies that make these products, they often sometimes took less profit. Why? Because उनको सेल करना होता है, वो थोड़ा कम प्रॉफिट में भी इसे सेल करते हैं। बट टू मेक मोर मनी दे मे कलेक्ट आवर पर्सनल डेटा एंड देन लाइक हमारी जो डेली बिहेवियर है, हमारा हैबिट है ना, वो सब ऑब्जर्व किया जाता है इनके थ्रू। एंड दिस डेटा हेल्प्स टू अंडरस्टैंड देम, टू मेक फर्दर थिंग्स एंड टू सेल देम इन अ लार्जर पब्लिक। ठीक है, यही बता रहा है दिस डेटा बेसिकली। ठीक है, दिस डेटा हेल्प्स देम टू अंडरस्टैंड व्हाट देयर आवर बाइंग बिहेवियर, आवर इंटरेस्ट, our habits, although they are not taking our permission directly, but they are doing this, and our homes are becoming their marketing tools, where these companies study our lifestyle to sell more and more products and services of their own to get more profit in their businesses. समझ में आई बात? ओवरऑल पैसेज ये बात कर रहा है। Now, statement says that knowledge of the consumer behavior leads to more capital expenditure in a manufacturing sector. अब देखो क्या बोल रहा है ये स्टेटमेंट कि नॉलेज होगा अगर कंज्यूमर बिहेवियर का, उससे कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। कैसे? पहली बात तो पैसेज इज नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्टली अबाउट दिस, बट अगर फिर भी अगर इम्प्लाई अगर हम ढूंढेंगे तो भी ये गलत है। व्हाई? बिकॉज अगर मान लो मैं कार मैन्युफैक्चर करता हूँ, ठीक है, और मुझे ऐसा फीडबैक मिल रहा है, मुझे ऐसा डेटा मिल रहा है कि वहां पे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं रादर देन यूजिंग देयर पर्सनल कार और काइंड ऑफ व्हीकल, तो मैं उसमें कैसे उसे मतलब प्रोड्यूस करूंगा, कैसे मैन्युफैक्चर करूंगा, उससे कैसे मुझे फायदा हो जाएगा। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट बाय इंक्रीजिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हम इसमें प्रॉफिट ले सकते हैं। सो दिस नॉलेज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर डज नॉट एक्सप्रेसिंग दिस स्टेटमेंट। ठीक है, सो ए इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। Now, the second one says that the knowledge of consumer behavior stimulates the growth of commerce and trade and thus helps in overall economic development of the country. तीसरा पढ़ो, interconnected device gives a lots of comfort to home users, improve overall quality of life. Absolutely statement is wrong. Absolutely statement is wrong. Why? Because it is not talking about the quality of life. If if I am using car for my personal gain, अगर मैं देखो क्या होता है, कभी कभी कुछ लोग सिर्फ पैसे खर्च करने के लिए फॉर द सेक ऑफ एक्सपेंडिचर, उनको कुछ एक्सपेंडिचर उड़ाना है, मतलब पैसे खर्च करने हैं, उसके लिए कुछ चीजें खरीद ली, तो वहां से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव होगी। ओवरऑल ये हम कैसे ये इंप्लाई कर सकते हैं इस पैसे से कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी निकल रही है। ये ओवरऑल बात कर रहा है ना इसमें कि इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस गिव्स अ लॉट ऑफ कंफर्ट टू द होम यूजर्स। नहीं भाई, किसी के लिए नहीं भी हो सकता है। सो स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नाउ द डी कहता है इंटरकनेक्टेड डिवाइस can be at security risk and the home users may have privacy risk। भाई यही तो बोल रहा है कि हमारे जो डेटा प्राइवेसी है वो हमारा रिस्क पे है, और उससे ये जो जो इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस हैं उससे हमारी जो डेटा है वो सिक्योरिटी रिस्क पे ताक पे लगा के हम अपने यूजर्स, मतलब हम जो इन कंपनियां हैं उन्हें अपना राइट दे रहे हैं, अपना बिहेवियर दे रहे हैं। सो दैट इज द एग्जैक्ट मैसेज इज कन्वेड बाय द होल पैसेज। ठीक है ना, सो आंसर इज डी। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है ना। अब अगला देखते हैं। मैसेज पढ़ो, पहले स्टार्ट करो, पॉज करो, खुद से पढ़ो, सॉल्व करो, फिर इसे देखो। ठीक है ना, चलो। अनलाइक द साइंस रिलीजन एंड साइंस, पोएट्री डज नॉट पॉजिट और एक्सपेक्ट एनी बिलीफ इन एब्सोल्यूट ट्रूथ। ठीक है, रिलीजन और साइंस के opposite, poetry is not expecting any belief in absolute truth, ये कह रहा है। Now those forces or individuals who claim to have absolute truth in their grasp tend to turn dictatorial or tyrannical। मतलब जो ऐसे व्यक्ति हैं और जो ऐसी ताकतें हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्लेम करते हैं that they have absolute truth, और वो जो कहते हैं कि एक ही सच है, फैक्ट बेस्ड सच होता है, एब्सोल्यूट ट्रूथ होता है, वो एक तरीके से डिक्टेटोरियल मैनर में शिफ्ट हो जाते हैं, डिक्टेट करने लग जाते हैं। बट द ट्रुथ यूजुअली डज नॉट एडमिट एनी कॉन्ट्रडिक्शन और इम्परफेक्शन। व्हाई? बिकॉज अगला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ट्रुथ एक फैक्ट होता है, जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये एक फैक्ट बेस्ड चीज है। ठीक है ना, लेकिन मैं अपना ओपिनियन नहीं दे सकता इसमें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं है, चलो राहुल गांधी जी हैं। व्हाई? बिकॉज इट इज फैक्ट दैट नरेंद्र मोदी जी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दिस इज द फैक्ट, दिस इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ। ठीक है ना, और यही कह रहा है कि ट्रुथ यूजुअली डज नॉट एडमिट एनी कॉन्ट्राडिक्शन और इम्परफेक्शन, इट इज यूनिटेरियन, सबके लिए एक ही ट्रुथ होगा, दैट प्राइम मिनिस्टर इज नरेंद्र मोदी। Now it is therefore not of much use of poetry, and poetry abides by its plurality of the life and the existence,
Perhaps the poetry follows what? Reality, which is plural, anachronistic, full of contradiction, against the tyranny of truth. Poetry remains the partition of democratic reality against the arrogance of power, wealth, hierarchy. Poetry proposes both humility and defiance. देखो, poetry is like a different poetry is a different from religion or a science. Why? Because it does not claim to have or need absolute truth, which religion or science do. In religion and science, people often believe that there is an absolute truth, but those who over like but those who say they have the ultimate truth, like if they believe that there is a imperfection, there is a no contradiction in it, they dictator. बात समझ में आई? But the poetry thrives on the opposite side. It embraces the contradiction. It embraces the diversity. It is talking about the messy reality of life. Reality is not always clean. It is logical. It is complex and sometimes confusing भी हो सकती है. Poetry reflects poetry reflects that complexity and challenges the ideas of a single truth in a world of dominated by power, by wealth, by hierarchy. ये जो आप पढ़ रहे हैं ना ये इनकी बात कर रहा है. Poetry is stand for its simplicity, its rebellion attitude, its democratic values, and its promote the humanity while also standing against the injustice, defiance. ठीक है ना? This is the whole crux of this passage. अब बात करते हैं options की. First one says it is the poetry, not the science or the religion, which recognizes and the accept imperfection in the human being. ध्यान से पढ़ो ये statement है. That truth usually does not admit contradiction or the imperfection. And truth, who believes in truth? The religion and science. ठीक है? तो ये स्टेटमेंट राइट है, लेकिन अगला हमें पढ़ना पड़ेगा पहले. दूसरा देखो, ट्रुथ इज रिवील्ड थ्रू द साइंस और द रिलीजन एंड द पोएट्री इज एनाथेमा और टू द ट्रुथ. एनाथेमा लाइक अपोजिट टू ट्रुथ. Poetry is not the opposite of the truth. Rather, poetry shows the real fact. Like it can be shows, it shows the both the things. Like जो reality में हो रहा है, logical चीजें भी हो रही हैं. It shows the other part of the end, other part of the things also, है ना? इसलिए ये statement गलत होगा. It is not opposite. Now, third one says that the poetry is romantic, imaginary, and is about feeling, whereas the science and the religions are about truth. अब ये बताओ, रोमांटिक और इमेजिनरी अगर नहीं बताएंगे पोएट्री, तो अदर फॉर्म में पोएट्री नहीं बनती. अदर फॉर्म्स भी होते हैं, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं पोएट्री के. सो दिस स्टेटमेंट इज पर्टिकुलरली कंसाइजिंग द पोएट्री, ओवरऑल पोएट्री इन रोमांटिक और इमेजिनरी थिंग्स. सो एब्सोल्युटली स्टेटमेंट इज रॉन्ग. पोएट्री अदर भी होती है. नाउ द डी सेज दैट इन वर्ल्ड ऑफ वायलेंस, देखो वायलेंस की कहीं बात हुई है नहीं हुई है, आगे पढ़ो. टायरनी एंड द बिगेटरी एंड पोएट्री इज द फॉर्म ऑफ डायनेमिक रेजिस्टेंस. देखो इधर से तो यहाँ सही में समझ में आता है कि ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन दिस पैसेज इज नॉट टॉकिंग अबाउट द वायलेंस. सो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है. सो ओवरऑल जो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये है आंसर हमारा. क्यों? बिकॉज द होल पैसेज द ऑथर इज ट्राइंग टू से that the poetry is the only and not the science or the religion which recognizes or accepts the imperfection. Why? Because the science and the religion accepts the perfect truth, in which the truth usually does not admit any kind of contradiction or imperfection. So here's the answer of this question. Option A is the correct answer. ठीक है? A is the correct answer. चलो अगला देखते हैं. The flower was not invented to please us. जो ये फ्लावर्स हैं, जो ये फूल होते हैं, ये हमें खुश रखने के लिए नहीं बनाए गए, हमें प्लीज करने के लिए नहीं इन्वेंट किए गए. It flaunted its petals and spread its perfume to attract an insect and not human being, not us. The insect carries the pollen from flower to flower, so that pollen is not carried away by the wind and thus not wasted. ठीक है? Now what we call a flower's beauty is merely a byproduct and a human invention. The perfume is not there to please us. It pleases us because it is there and we have been conditioned to it. ओवरऑल ये पैसेज ये कह रहा है, इसमें ऑथर ये कहना चाहता है कि जो फ्लावर है, इट वाज नॉट क्रिएटेड, इट वाज नॉट इन्वेंटेड फॉर द ह्यूमन बीइंग्स टू एडमायर. इट्स कलरफुल पेटल्स जो होता है या फिर जो अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंस आती है ना, परफ्यूम्स आती है, इट इज नॉट मेंट टू अट्रैक्ट अस. इट इज रादर मेंट टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स. व्हाई? बिकॉज इंसेक्ट्स जो होते हैं, दे हेल्प इन कैरिंग द पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर. ठीक है? एंड देयरफॉर दे हेल्प इन रिप्रोडक्शन ऑफ देयर. And this way, the
whole pollen does not get wasted by being carried randomly by the हवा का झोंका और wind, ठीक है ना? Now, what we see as the flower as a beauty. Why? Because it is actually the side effect of the natural process. It is not meant for these purposes. We find the smell pleasant or perfume good. Why? Like we find the smell pleasant, beautiful, not because it was made for us, but why? Because we have grown like this. We have conditioned to like this. बात समझ में आई? Now, पहला स्टेटमेंट कहता है ऑथर ऑफ द पैसेज बिलीव्स दैट फ्लावर्स आर क्रिएशन ऑफ द नेचर्स लग्जरी। अब ये बताओ, ऑथर तो ये कहना चाह रहा है कि जो हम एज अ ह्यूमन लग्जरी देखते हैं कि ये हमारी खुशबू, मतलब जो हम फ्लावर की खुशबू लेते हैं, इसके फ्रेग्रेंस को महसूस करते हैं, परफ्यूम को, इसकी सुंदरता को, इसकी ब्यूटीफुलनेस को देखते हैं, ये ह्यूमंस के लिए नहीं है। इट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ दैट द होल प्रोसेस ऑफ द फ्लावर्स। तो ये तो नेचर का साइड इफेक्ट नहीं बता रहा, नेचर का प्रोसेस बता रहा है, नेचर की लग्जूरियस लाइफ नहीं बता रहा है। इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट द नेचर्स लग्जरी, इट इज टॉकिंग अबाउट द अदर वे अराउंड। So statement one is so statement one is not correct. Now the second one says that the author of the passage does not believe in the usefulness of the flowers except as things of beauty. ध्यान से देखो, जो पैसेज में लिखा है उसी का अपोजिट ये कह रहा है। ऑथर इज नॉट डज नॉट बिलीव इन द यूजफुलनेस। भाई एग्जैक्टली exactly इसका अपोजिट कह रहा है। ऑथर इज सेइंग दैट देयर इज अपार्ट फ्रॉम इट्स ब्यूटी देयर इज इट्स यूजफुलनेस। वो तो उसका जस्ट अपोजिट बोल रहा है ना, कि हम तो उसको सिर्फ ये देख रहे हैं कि एक ब्यूटीफुल फ्लावर है, उसकी प्लेजेंट उसकी खुशबू आ रही है। दैट इज नॉट मेंट फॉर अस ना, एक्चुअली दिस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट। व्हाई? बिकॉज वी हैव कंडीशनड लाइक दिस। So this statement is absolutely opposite of what author is trying to say in this particular passage. So assumption यही है कि दोनों statement इसका गलत है। So D is the answer. ठीक है? So guys, इसी के साथ हमारी मास्टर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जर्नी यहाँ पे कंप्लीट होती है। दिस इज नॉट द एंड, बट दिस इज द बिगिनिंग अगेन। आज से आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को स्ट्रगल नहीं, एक स्ट्रैटेजी के थ्रू सॉल्व करना है। मैं जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इसका जो ओवरऑल एक वर्कशीट जो मैंने बोला था आपको प्रोवाइड कराऊंगा प्रैक्टिस के लिए, तो 1 से 2 दिन में मैं उसे प्रोवाइड करा दूंगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। आप उसे जाके सर्च कर सकते हैं @UXIS UPSC पे आप सर्च करेंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। उस पे आप जाके इजीली ये वर्कशीट पा सकते हैं। उससे मैं 1 से 2 दिन में अपलोड कर दूंगा, तो उसे प्रैक्टिस करो। अदर PYQs को भी प्रैक्टिस करो, साथ में मॉक टेस्ट लगा लो। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने एक वीडियो अलग से सेपरेट बनाया हुआ है, अगर अभी तक उसने उसको आपने नहीं देखा तो उसे जाके देख लो, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। ठीक है, तो उसे देखो कैसे मैनेज करना है, काम होके पूरा पेपर देना, कहीं भी स्पीड, कहीं भी जल्दबाजी मत करना, पैनिक मत करना, है ना? फोमो में मत आओ, फोमो से कुछ नहीं होता। अल्टीमेट प्रैक्टिस इज द की। अभी भी टाइम में प्रैक्टिस कर लोगे तो आराम से बन जाएगा, ठीक है ना? सो this is not I want to say the goodbye. It is just to see you soon in the next mission. Like we are building the new platform as you all of know. So मिलते हैं नेक्स्ट मिशन में। टिल देन रीड स्मार्ट, स्टे शार्प, और हमेशा याद रखो क्लैरिटी इज द पावर, और अब वो आपके पास है। ठीक है, तो टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स 2025 एंड CSAT पर्टिकुलरली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करके आना, और अपने जो भी फीडबैक होंगे उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर giving me this kind of support and love for this particular series, and if you guys are wanted something big, something more from my side, so you can share your thoughts in the comment section. We will definitely see look into it and try to do more things in favor of your preparation, in favor of your whole journey of UPSC. ठीक है, चलिए, till then, take care, bye bye.